Hi everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Sastrikal, Namaskar, Bonjour, Adab. Let's get started with today's session. तो हम बात करने वाले हैं minerals and energy resources की. So let's get started with that. हम करने वाले हैं एक one shot quick revision of this chapter. I'll try to keep this as short and crisp as possible, but at the same time cover all the very important points so that you just watch this video and are prepared enough to just go and answer all the possible questions that is supposed to come from this chapter. So on that note, without any further ado, let's get started. What are the topics that we'll be doing? But you will be revising basically the entire chapter because it's a one-shot session, right from minerals, their mode of occurrence, what are the mineral resources in India, what are the energy resources in India, and hence the entire chapter. But before I move on, I just want to take a quick moment to show you something very special, especially during your last few days of examination. आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपकी इसकी बहुत मदद लगेगी. वो है इम्बाइब लेंस. इम्बाइब लेंस का बच्चे आपने ऐप डाउनलोड कर लेना है जो कि बिल्कुल फ्री है एंड यू जस्ट हैव टू गिव द एक्सेस टू योर कैमरा एंड वॉट एवर टेक्स्ट यू आर स्टक विथ. ठीक है, अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी है जहाँ पे आप स्टक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने बस ये करना है कि उस पूरे टेक्स्ट की एक पिक्चर ले लेनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास पिक्चर है. एंड द मोमेंट यू टेक द पिक्चर, ऑल द कीवर्ड्स विल गेट हाईलाइटेड जस्ट लाइक दिस एंड यू कैन just click on the keyword and the related 3D models or maybe a map or maybe 2D model or videos, whatever relevant resources are there will automatically get suggested and will save a lot of time for you. So let me quickly show you. I have taken a screenshot of the content that we had on my screen. The moment I do that, you'll be able to see that the important words have gotten highlighted over here. So let's just say choose mineral and mineral resources in India. The moment I do that, automatically all the important videos, the related videos, relevant videos will start popping up in my screen and I can just get started with that and watch the video that I need to, which will be relevant to in order to resolve my queries. Because normally हमारा टाइम जो है वो ज़्यादातर जाता है इसी चीज़ को ढूंढने में कि कौन सा वीडियो देखे, कहाँ पे वो रेलेवेंट टॉपिक मिल जाएगा. और ये टॉपिक वाइज वीडियो मिलने की वजह से काफ़ी मदद मिल जाती है. बिकॉज अगेन द पॉइंट इज़ दैट इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स दैट हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, बहुत फाइट नहीं मारनी पड़ेगी. ठीक है, चलो. सो ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन एंड लेट मी ऑल्सो क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. बच्चों, मेरा नाम अंकना है और मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years in the field of education and I have mentored students both online and offline, a lot of them for both CBSE and ICSE. So I have done my studies in the field of humanities and hence I specialize in social science and English. So with that we'll get started with 3 basic questions. 3 सवालों के साथ हम शुरू करेंगे हमारा सेशन आज. Which one of the following applies to iron ore? Iron ore जो है वो बायोटिक है, रिन्यूएबल है, फ्लो है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, सॉरी मिनरल रिसोर्स है. तो आपने बताना है कि आयरन ओर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, किस तरीके के रिसोर्स में, बायोटिक, रिन्यूएबल, फ्लो या फिर नॉन रिन्यूएबल में. Take few seconds, think about it. We're starting with these basic questions to have actually a quick revision first. ठीक है, एक बेसलाइन चेक जैसा भी हो जाएगा. 3 बेसिक से सवाल होंगे जिनसे हम शुरुआत करेंगे. सो आयरन और बच्चे कोई भी मेटल जो है बेसिकली वो नॉन रिन्यूएबल ही होता है. उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं बट अवेलेबिलिटी उसकी जो है वो लिमिटेड होती है, एग्जॉस्टेबल होता है. ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक ओरिजिन है इसकी विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कुद्रेमुख आयरन ओर mine is situated in which of the following states? कर्नाटका, केरला, उड़ीसा और छत्तीसगढ़. कुद्रेमुख जो है वो हमें कौन से स्टेट में मिलता है? कर्नाटका में, केरला में, उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में.
So you'll actually be very interested to know this, that kudre mukh ka matlab, kudre is like a horse shape, mukh is face, right? So this iron ore where it's found, it kind of has like a horse shape to it, and hence it gets the name from there, which is Kudremukh mines. ये हमें कर्नाटका में अवेलेबल मिलते हैं. So Kudremukh iron ore is located in Karnataka, and it's in fact India's major iron ore belt में available, Bellary, Chitradurga and Chikmagalur Tumkur belt में. It is the iron ore जहाँ से export होता है good quality, and is transported by pipeline as slurry to reach the port near Mangalore. Okay, last question before we move on forward. Which of the following is a non-conventional source of energy? Petroleum, coal, solar energy, or none of the above? Non-conventional source पूछा जा रहा है, which is not the regular source that we have been used to and have been using in general. Non-conventional source of energy, you guys. सो बच्चे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? वैसे तो हम अभी रिवाइज करेंगे, बट इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं, जो ट्रेडिशनल नहीं है, नॉन कन्वेंशनल का मतलब तो यही होता है जो चीज़ ट्रेडिशनल नहीं होती है. तो यहाँ पे वो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है जो ट्रेडिशनल तरीके से हम यूज़ करते हुए नहीं आए हैं. पेट्रोलियम, कोल काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ होता है. सोलर एनर्जी एक नया फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम अनकन्वेंशनल की तरह ही बताएंगे. ये नए तरीके का शुरुआत, एक नई तरीके की शुरुआत है ऑफ रिन्यूएबल कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग रिसोर्स. सो दिस इज अ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, दैट्स योर सोलर एनर्जी. ओके, ग्रेट. So with this we have finished our first 3 revision questions. Non-conventional energy उनको कहते हैं जो environment friendly होती है, जो जनरेट होती है एंडलेस फ्लो से, यानी कि रिन्यूएबल होती है, ये एग्जॉस्टेबल नहीं होती है एज सच. एंड सन, विंड, वेव्स, इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ विच इज़ योर थर्मल, ये एनर्जीज जो हैं इनको हम आजकल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरह ही आइडेंटिफाई करते हैं. सो ऑल द बिल्डिंग्स दैट वी सी अराउंड अस टोटली आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट. Have you seen that concrete is actually a mixture of several elements? It's not just one element that is there. Cement है, water है, sand है, gravel है, और जब इसको mix किया जाता है तो liquid ही होता है, but when it solidifies it's like a rock like material, जो कि individually इनमें से कोई भी component as such नहीं होता है. The natural rock also are also formed similarly. जो हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका फॉर्मेशन का तरीका भी जो है कहीं ना कहीं सिमिलर है, सेम है, और उसी के साथ जो है और कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स एंड मिनरल्स भी एम्बेड हो जाते हैं उसमें ही. सो लेट्स लर्न मोर अबाउट देम. सो स्टार्टिंग विथ मिनरल्स. मिनरल्स का मतलब क्या होता है? मिनरल्स की बेसिक डेफिनेशन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है. ये एक होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है विद अ डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर. इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो वेल डिफाइंड होता है. कार्बन ऐसा होगा, डायमंड ऐसा होगा, फॉस्फोरस ऐसा होगा, जो भी आपके मिनरल्स हैं, और ये होमोजेनियस होता है, यानी कि सेम तरीके के पार्टिकल्स एंड एटम्स से बना होता है और नेचुरली अकर करता है. ह्यूमंस नहीं बनाते हैं इसे. दैट इज नोन एज मिनरल. तो अगर मिनरल की बेसिक हमें डेफिनेशन पूछी जाती है तो होमोजेनियस है, यानी कि सारे जो एटम्स है सेम ही हैं, अलग अलग मिक्सचर नहीं बना हुआ है हमारा, नेचुरली अकर कर रहा है और एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ अकर कर रहा है. हर एक मिनरल का अपना एक बेसिक डिफाइंड यूनिक स्ट्रक्चर होगा विच विल बी यूनिक टू itself. ये अलग अलग फॉर्म्स में नेचर में पाया जाता है, राइट फ्रॉम वेरी हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टैल्क. तो मिनरल्स की कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिफाइंड फॉर्म नहीं है. लिक्विड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है. तो टैल्क
जो हमारा एक पाउडर होता है वो कितना सॉफ्ट होता है और बिल्कुल पाउडरी सब्सटेंस होता है टैल्क, और वहीं पे हमारे पास डायमंड है जो इतना हार्ड होता है कि वो ग्लास को भी कट कर सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्मेशंस में मिनरल्स हमारे अराउंड पाए जाते हैं। कहाँ पे? रॉक्स में नॉर्मली। तो जैसे कि आप ये पिक्चर में भी यहाँ पे देख पा रहे होगे, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन ओर। एक ओर की तस्वीर है ये, और ज़्यादातर पहाड़ और आपको या फिर ग्राउंड में, ज़मीन में, जो ज़मीन बहुत समतल बहुत समय से बनी हुई है वहाँ पे ही पाए जा रहे हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो है आपका हमारे अर्थ से या सी से, लैंड से निकाल रहे हैं हम, और रॉक्स में प्रेजेंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हालांकि मिनरल्स इंडिविजुअली होमोजेनियस होते हैं, लेकिन या तो ये कॉम्बिनेशंस में या फिर इंडिविजुअली होमोजेनियस फॉर्म्स में ही रॉक्स में पाए जा सकते हैं। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस, विच मीन्स मल्टीपल मिनरल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर रॉक ही है, एक पर्टिकुलर मिनरल ही है जो किसी रॉक में पाया जा रहा है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिनरल्स। नाउ अगर स्टडी की बात की जाए मिनरल्स की बाय द जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट्स, सो जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स। तो कौन है जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट का डिफरेंस, वो हम समझ ले रहे हैं। काफ़ी सिंपल है ये समझना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी काइंड ऑफ complex to understand. So geographers, it's like a tongue twister. Geographers उनको कहते हैं बच्चे जो इन मिनरल्स को स्टडी करते हैं विद इन द अर्थ्स क्रस्ट टू अंडरस्टैंड द लैंड फॉर्म एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? ये ढूंढ रहे हैं कि ये मिनरल्स कहाँ पे मिल रहे हैं, किस लैंड फॉर्म में मिल रहे हैं, प्रॉबेबली उसके पीछे के अकरेंस की वजह क्या रही होगी, क्यों उन एरियाज़ में पाए जाते हैं, किन एरियाज़ में पाए जा रहे हैं, उनकी मैपिंग कर रहे हैं, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ पे है, किस अमाउंट में है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, ये सब स्टडी करना। यानी कि मिनरल्स की प्रेजेंस स्टडी करना और प्रेजेंस के साथ उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्टडी करना। ये काम होता है जियोग्राफर्स का। जियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? दे फोकस ऑन द फॉर्मेशन, एज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स। यानी कि मिनरल के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं ये, राइट फ्रॉम इट्स बर्थ टू वॉट इट हैज़, कहाँ से बना, क्या कंपोनेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे। क्लासिफिकेशन अगर जनरल पर्पस पे की जाए तो दो तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। एक होती है कमर्शियल यूटिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, दूसरी होती है जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ द मिनरल्स। ये पढ़ेंगे हम आगे चल के, समझेंगे थोड़ा सा और। तो अब आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है, अ डैश स्टडीज, एंड गाइज विल कीप डूइंग सम क्वेश्चंस एवरी नाउ एंड देन सो दैट वी कीप ऑन हैविंग लाइक अ क्विक ब्रश अप ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग, हमें समझ आ रहा है कि नहीं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक अच्छा तरीका होता है रिवाइज करने के लिए कुछ भी, ठीक है। सो क्वेश्चन है, अ डैश स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, देयर एज एंड द फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। इज इट अ जियोलॉजिस्ट और इज इट अ जियोग्राफर? जो मिनरल्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहा है, उसके एज की, कॉम्पोजिशन की, किन चीज़ों से बना है, उसे हम क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं या जियोग्राफर कहते हैं? सो गाइज, हमने दो डेफिनेशंस पढ़े और ये दोनों डेफिनेशंस का आइडिया होना, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है।
हो सकता है ये डेफिनेशन में आ जाए, आइडेंटिफाई करने आ जाए हमें, या फिर हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए दैट वेयर यू आर सपोज टू मैच द फॉलोइंग एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किसकी बात हो रही है. सो दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. राइट नाउ वी डिड दैट पीपल हु डू द स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म्स, कहाँ फॉर्म हुआ है, किन रॉक्स की वजह से फॉर्मेशन हुई है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या क्वालिटी है, ये सारी स्टडीज करने वाले लोग जो हैं वो कहलाते हैं जोग्राफर. However, then we have people who do the study of the mineral particularly. They do a study of its features. Those people are known as geologists. उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें हम geologists के नाम से जानते हैं. So the correct answer to this question will be a geologist. It is a geologist who does the study of the formation of the mineral, their age, their proportion, etc. ना मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स कहाँ कहाँ अकर करता है, पहली उसकी कैटेगराइजेशन है. मिनरल्स जो है हमें ओर्स में पाए जाते हैं. तो बेसिकली ओर्स क्या है, जो अक्यूमुलेशन होता है मिनरल का. देखो मिनरल एक जगह मिल रहा है ऐसा नहीं होता है. दिस लाइक एन अक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल. वो रॉक में हो सकता है, सी बेड में हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है. ये जो अक्यूमुलेशन है जहाँ बल्क में पाया जाएगा मिनरल, उसे हम मिनरल ओर कहते हैं, जहाँ से फिर हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. जहाँ वो जगह आप स्टडी कर लोगे, एक जोग्राफर स्टडी कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा क्वालिटी, प्रेजेंस, क्वांटिटी, और वहाँ से फिर उसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. ये जो टर्म है ओर, ये यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए अक्यूमुलेशन को, जैसे मैंने आपको बताया एक कलेक्शन को मिनरल्स के, जो कि ज़रूरी नहीं है, मे नॉट नेसेसरली बी होमोजीनियस. ये होमोजीनियस हो नेचर में, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इट कुड बी मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट्स एंड मिनरल्स एज वेल. सो सबसे पहले मिनरल के अगर अकरेंस की बात कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पॉसिबली पाया जा सकता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये इग्नियस रॉक है. इग्नियस रॉक में, इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है, वॉल्केनिक एरप्शन होती है ना. वॉल्केनिक एरप्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है, हो रहा है. लेट मी क्विकली चेंज द कलर ओवर हियर. दिस इज द वॉल्केनिक एरप्शन. ये वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, फिर सॉलिडिफाई हो जाता है. सॉलिडिफाई होके क्या बन जाता है, ये सॉलिडिफाई होकर के ये एक रॉक बन जाता है ना. सॉलिड होकर के पत्थर बन जाता है, रॉक बन जाता है. अब ये रॉक, अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे मिनरल्स कैसे बने. सबसे पहले सवाल ये, मिनरल्स बने कैसे, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल तरीके से हम समझेंगे. मिनरल्स क्या होते हैं, नॉर्मली मिनरल्स जो है वक्त के साथ, अगर पेट्रोलियम, कोल, इन सब चीज़ों की बात भी हम करते हैं, तो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होती हैं, डेड एंड डिकेइंग बॉडी होती हैं, उनमें एक सर्टन, उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है ना. वो कार्बन जो है डेड और डीके होने के बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ बरी हो जाता है अंदर ज़मीन में, और धीरे धीरे प्रेशर के साथ जाता जाता है, अंदर जाता जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कार्बन कन्वर्ट होता जाता है और उसके बाद फिर एक एनर्जी रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है. क्या हो जाता है, एक एनर्जी रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ द थिंग इज दैट ये सब कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे कोर में पहले ही जा चुकी हैं, बहुत वक्त से प्रेजेंट है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बनने में इसीलिए लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं. जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये जो कोर में अंदर बिल्कुल या मैंटल में डेड डिकेड चीज़ जो कब से पड़ी है, वो निकल कर बाहर आ जाती हैं उस वॉल्केनिक इरप्शन के साथ, और वो सॉलिडिफाई होकर के फिर बन जाता है पहाड़, एक रॉक बन जाता है, जो कि इग्नियस हो सकता है या फिर हो सकता है आपका मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक हमें पता है, जो बदल करके चेंज हो करके बन जाता है. इग्नियस रॉक जब प्रेशर और हीट और आपका बारिश इन सारी चीज़ों से गुजरती है तो मेटामॉर्फिक में भी चेंज होती है. एक और तरीका है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटरी रॉक्स में भी लेयर ऑन लेयर जो है आपका ये सेम चीज़ें जमा होती जाती हैं, और वहाँ पे भी हमें मिनरल्स की प्रेजेंस मिल सकती है लेयर्स में, और लेयर्स में ही प्रेजेंट मिलेगी, क्योंकि सेडिमेंटेशन होता लेयर्स में है. एनीवेज, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई, इग्नियस रॉक्स हो गई, ये सॉलिडिफाई होती हैं.
आपका लावा निकलने से, लावा तो अपने साथ वो सारे मिनरल, डेड, डिकेड, बहुत सारे टाइम के साथ जो कार्बन कन्वर्टेड चीज़ें हैं उनको लेकर के निकला है। तो जब वो निकला है तो उसके क्रैक्स में, क्रिविसेस में, फॉल्ट्स में, जॉइंट्स में कहीं दरारें हैं, कहीं दो पत्थर जुड़ रहे हैं, कहीं एक गड्ढा सा बना हुआ है, अंदर एक गैप सा बना हुआ है। इन सारे जगहों पे ये मिनरल्स जमा होते हैं जब वो अंदर से इरप्ट हुआ होता है। तो इन सेडिमेंटरी रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स एंड लेयर्स, एज आई टोल्ड यू। क्योंकि लेयर ऑन लेयर जमा हो रहा होता है तो कहीं एक मिनरल बन गया, फिर कुछ और आ गया, फिर मिनरल आ गया, ऐसे। द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑल्सो फॉर्म मिनरल्स। तो हो सकता है कि कुछ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, पानी के साथ आ गए हो, या जो सरफेस रॉक है, जो ज़मीन की रॉक है, ज़मीन पे जो बहुत पुरानी रॉक फॉर्म्ड थी, पहले से पत्थर फॉर्म थी, वो खुद में टूट टूट करके भी जो है मिनरल को फॉर्म कर सकती है। दे ऑल्सो अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड ऑफ वैलीज एंड फ्लोर्स ऑफ बेस ऑफ हिल्स। वाई? क्योंकि ये आप अगेन माउंटेन से ही तो आ रहा है, एलुवियम भी माउंटेन्स को इरोड करते हुए लेकर के आ रहा है। आपका रिवर्स जो है वो आती हैं और एलुवियम को क्या करती हैं, जमा कर देती हैं, यहाँ पे कलेक्ट कर देती हैं। तो जब वो उसको कलेक्ट कर देती है तो उसमें मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज ये भी जमा हो जाते हैं। द ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स बिकॉज अगेन ओशन इज़ वेरी वेरी ओल्ड। उसमें आपका पूरा का पूरा खजाना प्रेजेंट है, एक तरीके से ट्रेजर प्रेजेंट है, डेड, डिकेड एनिमल्स का, बहुत सारी चीज़ों का, मिनरल्स का, रिसोर्सेज का। तो वहाँ पे भी हमारे जो मिनरल्स है वो अकर करते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात की जाए तो दो आपके बेसिस पहले हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटल्स क्या होते हैं आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, जो उन्हें मेटल बनाती हैं। मेटेलिक मिनरल्स में भी दो आपका फर्दर डिवीजन होता है, एक जो आयरन वाली ओर्स होती हैं तो ये फेरस कहलाती हैं, जो कंटेन करती हैं आयरन। दूसरी होती है नॉन फेरस, जो विदाउट आयरन होती हैं। तो फेरस वाली क्या हो गई, आयरन ओर हो गई, मैंगनीज हो गई, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। आई विल क्विकली हाइड माई सेल्फ सो दैट यू आर एबल टू सी द एंटायर फ्लो चार्ट। सो फेरस वाला हो जाता है कंटेनिंग आयरन, वो पहला मेटेलिक है। दूसरा मेटेलिक नेचुरली होगा नॉन फेरस, जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट। ये सारे वो मेटल्स हैं जिनमें मेटल्स जो आपका आयरन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ प्रेशियस हमारे मेटल्स भी होते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं, जैसे कि प्लैटिनम, जैसे कि वाइट गोल्ड, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। देन यू हैव द नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिनमें ये प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये सब नहीं होता है, हार्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, टैल्क, लाइमस्टोन, मार्बल, कुछ भी हो सकता है। एंड देन यू हैव एनर्जी मिनरल्स। तो ये हमारे बेसिक मिनरल्स थे। एनर्जी मिनरल्स में हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो एग्जाम्पल बन जाते हैं। सो ये सारे मेटल्स जो है या मिनरल्स जो हैं बच्चे, ये दूसरी चीज़ों की फॉर्मेशन में काम आते हैं, कि कुछ बनाने में, कुछ केमिकल सब्सटेंस बनाने में, कुछ हार्ड सब्सटेंस बनाने में, कुछ फिजिकल सब्सटेंस बनाने में। एनर्जी मिनरल्स का काम क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए इनको एनर्जी मिनरल्स कह रहे हैं। पोटैश को बर्न करोगे या किसी जगह इस्तेमाल करोगे, टिन को इस्तेमाल करोगे, तो वो एनर्जी नहीं देगा आपको, है ना, वो फ्यूल का काम नहीं करते। दे डू नॉट वर्क एज फ्यूल, वेयर एज दीज गाइज दे वर्क एज फ्यूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स जो है हमारे लगभग 3/4 है ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। यानी कि टोटल जो मेटल वाला मिनरल हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें 3/4 की वैल्यू का हम आयरन अलोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि लार्जेस्ट अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आयरन प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, आयरन ओर की बात करें तो इंडिया इज एक्चुअली वेरी वेरी अबंडेंट, वी आर क्वाइट ब्लेस्ड विथ रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। एंड हमारा मैग्नाइट एंड हेमेटाइट आर द टू काइंड्स दैट इज फाउंड ओवर हियर। ओके,
दोनों ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं। मैग्नाइट लेकिन बेस्ट होता है, इसमें 70% आयरन का कंटेंट होता है, तो इसलिए मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नाइट से मैग्नेटाइट 70% लाइक द हाईएस्ट द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर दैट यू कैन से, जिसमें आयरन कंटेंट बहुत फाइन होता है, बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए मैग्नेटाइट कहलाता है। फिर आता है हेमेटाइट, इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, 50 to 60% आयरन आपका कंटेन करता है ये, लेकिन रिलेटिवली मैग्नाइट के कंपैरिजन में जो इसकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिप्रिशिएटेड होती है, मैग्नेटिक क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी हाई नहीं होती है। देन द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स, तो और हमने अभी अभी समझा जो अक्यूमुलेशन होता है, आपको याद है हमने अभी पढ़ा ना कि अक्यूमुलेशन होता है ये आयरन ओर का, मतलब किसी भी तरीके के मिनरल का, किसी भी मिनरल के का जो अक्यूमुलेशन होता है, जो कलेक्शन होता है, जहाँ से आप उसको फिर जो है ऑब्टेन करते हो, क्योंकि वहीं पे इतनी क्वांटिटी और अच्छे क्वालिटी में प्रेजेंट होता है कि फिर इस ओर से हम उसे एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। ऐसे आपके सोर्स को हम ऐसे ओर के बेल्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहाँ पे आयरन हमें इन जनरल बहुत ज़्यादा भर भर के इंडिया में मिलता है। उड़ीसा और झारखंड बेल्ट एक हो गया, तो प्लेटूज में बच्चे हमें ये बहुत देखने को मिलता है। प्लेटूज में क्यों देखने को मिल रहा है, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड जो है उसका हिस्सा था इंडिया, जो कि आज हमारा पेनिनसुलर प्लेटू बन चुका है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड है, इसीलिए जो ये पोर्शन है बहुत ज़्यादा रिच पाया जाता है मिनरल्स में, बहुत तरह के मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। वैसे ही आपको दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर का बेल्ट मिल जाएगा। फिर आपका जो कि आपका महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलूर, तुमकुर अगेन इन कर्नाटका। देन यू ऑल्सो हैव द महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट। तो ये महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट भी है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आयरन रिसोर्सेज मिलते हैं। जहाँ पे भी मिलेंगे उनके आसपास आप एक पोर्ट का प्रेजेंस भी ज़रूर पाओगे। पोर्ट का काम क्यों है, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ आयरन मिलती है वो एक्चुअली हम उनमें से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी हाई हमारा यहाँ पे फॉरेन ट्रेड हो रहा होता है, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा होता है जो आयरन से रिलेटेड है। ठीक है, तो फेरस मिनरल्स, थोड़ा सा इसको अब डिटेल में देखते हैं। आयरन ओर के बारे में हमने समझ लिया, हमने बेल्ट की बात कर ली, हमने बात कर ली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट बेटर है, हेमेटाइट थोड़ा सा लो लेवल का है, मैग्नेटाइट में बहुत हाई मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती है, प्रेजेंस ऑफ आयरन जो है वो 70% होता है, हेमेटाइट में 50 to 60% होता है, थोड़ा सा लो क्वालिटी होता है, लेकिन दोनों ही काफ़ी अमाउंट में इंडिया में पाए जाते हैं। और किन एरियाज में पाए जाते हैं, तो आपका उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, दुर्ग, बेलारी, ये वाला पोर्शन है, चित्रदुर्ग है, चंद्रपुर है, ये वाला बेल्ट है। देन यू हैव तुमकुर एंड यू नो कर्नाटका में भी हमारे पास, यहाँ पे हमने देख लिया कि तुमकुर का बेल्ट है, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलूर वाला, देन दुर्ग, बस्तर एंड चंद्रपुर वाला, महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट है। ये सब जगहों को आपको याद रखना होगा, मैप मार्किंग में भी काम आती है, या इन जनरल बात करने के लिए, कभी आंसर लिखने के लिए आयरन ओर में या आयरन ओर के बेल्ट के बारे में, दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। देन यू हैव मैग्नीज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फेरस मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम उन मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, या जो अलॉय हो सकते हैं आपके आयरन के, वो भी फॉर्मेशन इन मिनरल्स की मदद से होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिनरल्स विच हैव सम कंटेंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट, बिगिनिंग विद मैग्नीज। मैग्नीज के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम। मैग्नीज बच्चे मेनली यूज किया जाता है स्टील या फेरोमैग्नीज अलॉय में। फेरोमैग्नीज यानी कि सीधा सीधा आयरन के साथ मैग्नीज को मिला करके एक अलॉय बनाया जाता है,
उसके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, या फिर स्टील में मैग्नीज डालने से उसकी जो क्वालिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो बेटर हो जाता है। लगभग 10 kg मैग्नीज चाहिए होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए 1 टन ऑफ स्टील। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ रहा है, लेकिन अगर 1 टन यानी कि 1000 किलो स्टील हमें प्रोड्यूस करना है तो उसमें 1 kg हमको क्या चाहिए होगा, उसमें 1 kg हमको मैग्नीज चाहिए होगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 टन स्टील निकल कर आता है। इट ऑल्सो इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स। तो ये यूटिलिटी आपको याद रखनी होगी कि किन चीज़ों में काम आता है, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको एक नोट लिखने दे दूं मैग्नीज पे, कहाँ प्रोड्यूस होता है, क्या पाया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल आपके अलॉयज़ के और स्टील के अलावा और किन चीज़ों में हो रहा है। तो इसका इस्तेमाल हमारा हो रहा है ब्लीचिंग में हो रहा है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में हो रहा है, पेस्टिसाइड्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, इन सारी चीज़ों में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में हम मैग्नीज इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली अ फेरस मिनरल। अब फेरस मिनरल में हमें सिर्फ मैग्नीज ही पढ़ना था। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है नॉन फेरस मिनरल्स, यानी कि बिना आयन कंटेन करे हुए वाले मिनरल्स, जिनका एग्जाम्पल हमने देखा था कॉपर है, टिन है, लेड है, बॉक्साइट है। सो नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, इन सारी चीज़ों को कंटेन करते हैं। प्रेशियस मेटल्स भी जो होते हैं बच्चे, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, उसमें आयन प्रेजेंट नहीं होता है। सो टेक अ सेकेंड एंड जस्ट गो थ्रू द इंफॉर्मेशन अबाउट कॉपर एंड बॉक्साइट। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द अदर नॉन फेरस मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। तो आप एक बार एक रीडिंग लगा लो कॉपर और बॉक्साइट की, देन आई विल ऑल्सो रीआइटरेट द इंफॉर्मेशन फॉर यू। ओके ग्रेट। सो अभी जब तक कॉपर कर रहे हैं, लेट मी शो माई वीडियो सो दैट आफ्टर दैट जब हम बॉक्साइट पे आए तो आप बाकी का कंटेंट देख सको। कॉपर की क्वालिटी क्या है, कॉपर वायर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, एयर कंडीशनर्स में, रेगुलर वायरिंग में काफ़ी इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ इट्स मेटेलिक प्रॉपर्टीज विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। इट इज़ हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। क्या मतलब इस बात का, उसे इतने पतले 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 शीट में भी बीट करके एक शीट का फॉर्मेशन दिया जा सकता है, या फिर एकदम पतले लंबे वायर में भी रोल किया जा सकता है। आप उसको किसी भी तरीके से बीट करके कोई भी फॉर्मेशन दे सकते हो, एक पतले शीट की या वायर की। ये मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल को डिफाइन करता है, और ये कॉपर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों ही गर्म जो हीट होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत वंडरफुल तरीके से कॉपर से पास होती है। सो कॉपर का इस्तेमाल इन सारी चीज़ों में भी बहुत अच्छे से होता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। तो किन चीज़ों में इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिसिटी घर में वायरिंग करने के लिए तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होगा। हीट की बात कर रहे हैं तो केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होगा। इन सारे मतलब केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में, नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू डेफिनेटली नीड टू रिमेंबर। कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है हमारा, तो बालाघाट माइंस जो है एमपी में, वहाँ पे पाया जाता है। खेतरी माइंस जो है राजस्थान में, वहाँ पे पाया जाता है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, तो आप देखो कुछ अगर आपको समझ ना आए तो झारखंड एंड उड़ीसा, एमपी एंड छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादातर आपको मिनरल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उड़ीसा और झारखंड एक बहुत सेफ चॉइस हो जाता है किसी भी मिनरल में। अगर आपको बताना है कि कहाँ पाया जाता है, गो अहेड एंड जस्ट ब्लाइंडली राइट दी स्टेट्स एंड यू विल बी करेक्ट, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट क्या है बच्चे, एक्चुअली ये एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम को यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। एल्यूमिनियम भी एक दूसरा मेटल है जो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में। अगेन इसकी कंडक्टिविटी की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी सी इज बॉक्साइट जो है वो एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है मतलब इससे ही हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर रहे हैं। एंड बॉक्साइट डिपॉजिट्स फॉर्म होती हैं डिकम्पोजिशन से बहुत तरह के वैरायटी ऑफ रॉक्स की जो एल्यूमिनियम सिलिकेट में बहुत रिच होती हैं। तो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट में बहुत रिच होती हैं। यहाँ से ये सारे रॉक्स जब आपके ब्रेक डाउन होकर डिकम्पोज होकर निकल रहे हैं तो वहाँ पे पाए जाते हैं ये। एंड देन यू ऑल्सो हैव एल्यूमिनियम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट एंड हैज गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिबिलिटी। तो जैसे मैंने आपको बोला वायरिंग में अगर यूज हो रही है तो मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा मैटर करते हैं और ये प्रॉपर्टीज इनके एक्चुअली है भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। Deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau, as I told you, Central Highlands. तो आपका छोटा नागपुर प्लेटो एक हमेशा सेफ चॉइस रहेगा। कभी भी आपको एग्जाम्पल्स देना है कि कहाँ पे कोई मिनरल पाया जाता है एंड यू आर नॉट श्योर इन दैट केस, बट द बेस्ट केस सिनेरियो ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी दैट यू रिमेंबर दैट व्हाट एग्जाम्पल्स डू यू वांट टू साइट। सो अमरकंटक प्लेटो, मकाई हिल्स एंड द प्लेटो रीजन ऑफ बिलासपुर एंड कटनी। तो बिलासपुर और कटनी वाला रीजन जो है वहाँ पे भी आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम और उसके रॉ मटेरियल जो हो जाते हैं उसकी प्रेजेंस पाई जाती है, ठीक है। नाउ विद दिस वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द नॉन फेरस मिनरल्स। जो हमारे नॉन फेरस नॉन आयरन कंटेनिंग मिनरल्स है उनके बारे में हमने बात कर ली। अब इसके साथ हम फिनिश कर ले रहे हैं हमारा मेटेलिक मिनरल्स का कहानी, ठीक है। अब हम किसकी कहानी शुरू करेंगे फिर? अगर हमने ये फिनिश कर लिया है तो हमारी कहानी शुरू होगी अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, जो डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये कैरेक्टर्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नहीं होगा। तो इसमें माइका एग्जाम्पल आ जाता है। माइका क्या होता है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट माइका इज। माइका एक्चुअली लेयर ऑन लेयर छोटे छोटे पतले पतले शीट्स जैसे होंगे, लेकिन जब आप उनको तोड़कर ध्यान से देखोगे तो लेयर पतले 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 एक के ऊपर एक, जब आप उसको तोड़ना चाहोगे ना तो भी वो लेयर्स में कम ऑफ होता है। इसको नॉन मेटेलिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट आपका वो हो जाता है, मिनरल हो जाता है माइका। झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो आई कम फ्रॉम झारखंड में जब आप रोड पर वॉक करोगे या कभी रोड पे ट्रैवल करोगे वेयर देयर इज लाइक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल स्टेइंग एंड देयर इज सम पार्ट ऑफ द मेन लैंड लेफ्ट, तो क्या होता है फुटपाथ कंस्ट्रक्शन नहीं होती है बड़े हाईवेज वगैरह में, तो रोड्स बन गए हैं और साइड में जो जमीन है वो खाली छोड़ दी जाती है वॉकिंग पर्पज से, काइंड ऑफ अ स्पेस इज लेफ्ट। व्हेन यू गो एंड पिक द सॉइल ओवर देयर, उन सब में आपको माइका भरा पड़ा मिलेगा। इट्स वेरी वेरी रिच। छोटा नागपुर प्लेटो में बहुत ही ज्यादा अवेलेबिलिटी है माइका की। ये मेडअप होता है सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स के, जैसे मैंने बोला लेयर ऑन लेयर, लीव्स पे लीव्स, प्लेट्स पे प्लेट्स बैठे होते हैं और बहुत चमकता है, सिल्वर सा दिखेगा, मिरर काइंड ऑफ इफेक्ट होगा इसका। तो ये क्लियर होता है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, किसी भी कलर का पाया जा सकता है। नॉर्मली वेरी रिफ्लेक्टिव इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी। इट हैज़ लो पावर लॉस फैक्टर, यानी कि जब ये पावर जो है उसे ट्रांसफर कर रहा है तो पावर लूज करना, खो देना जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज भी बहुत अच्छा है। तो स्टेबलाइजर वगैरह में इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा होगा कि वोल्टेज अगर बहुत हाई होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी इंडिस्पेंसिबल मिनरल है, यानी कि एक ऐसा मिनरल है जिसके बिना अपने आप हमारी ज़िंदगी सोच पाना, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सोच पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। एंड माइका जो है वो डिपॉजिट उसका फाइंड किया जाता है कहाँ पे? नॉर्दर्न एज में ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। तो छोटा नागपुर प्लेटो जैसे मैंने आपको बताया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, थोड़ा वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सारे एरियाज में स्पेशली नॉर्दर्न पोर्शन में भर भर के हमें क्या मिलता है? माइका मिलता है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ग्रेटर अमाउंट में, ठीक है।
रॉक मिनरल्स क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी जो है आपका बहुत बड़ा सीमेंट फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन उसका रॉ मटेरियल है। लाइमस्टोन कहाँ मिल रहा है? हमें मिल रहा है रॉक्स में, विच इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। तो वो जो पत्थर होते हैं जिनकी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, सीमेंट उससे ही बनता है, काफ़ी रिच होता है कैल्शियम में, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, उससे लाइमस्टोन फॉर्मेशन होती है। ये बेसिक रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री का है एंड इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस चलता है आयरन ओर में, उसमें लाइमस्टोन एक कैटलिस्ट की तरह काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना, स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप साइंस ऑप्ट कर रहे हो तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विच विल बी कंडक्टेड। 30 मार्क्स का आपके सारे पेपर में साइंस के अलॉटमेंट जो है वो प्रैक्टिकल्स की ही होती है। सो प्रैक्टिकल्स आप बहुत सीरियस हो जाएंगे और मल्टीपल टाइम्स, लेकिन स्कूल में फिर भी प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा। एक बार अच्छे से आपको लैब में ले जा करके एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है, फिर दूसरे बार दूसरा कराया जाता है, एंड दैट्स हाउ यू कीप लर्निंग। बट देयर आर टाइम्स वेयर प्रैक्टिकल के दिन हम एब्सेंट हो जाते हैं, और देयर आर टाइम्स जहाँ पे हमें एक बार में प्रैक्टिकल में हमने क्या किया है उसके रिजल्ट सही नहीं आया, समझ नहीं आया, या इक्विपमेंट थोड़ा टूटा हुआ था तो कुछ बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में उसे शेयर करना पड़ा, या फिर कुछ अगर हार्मफुल और रिस्की केमिकल था तो उसे हमें छूने ही नहीं दिया गया, हमारे टीचर्स ने उसको टच ही नहीं करने दिया। ऐसे कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अब 30 नंबर का होगा। मोर देन दैट, प्रैक्टिकल का मतलब ही ये होता है प्रैक्टिकली, विच मीन्स टू परफॉर्म, टू लिव इट, जो आप एक्चुअली खुद से करके देखते हो। सो अगर आप लर्निंग बाय डूइंग नहीं कर रहे हो प्रैक्टिकल्स में, प्रैक्टिकल्स को आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आपको याद नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा। और थ्योरी कितना पढ़ोगे? प्रैक्टिकल का पर्पस जो है थ्योरी पढ़ना नहीं है, उसके लिए हमारे बाकी थ्योरी के 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वाला सिलेबस होएगा। उसके अलावा ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो साइंस में स्पेशली, वो आप लर्न कर रहे हो बाय डूइंग इट, बाय परफॉर्मिंग इट, बाय एग्जीक्यूटिंग इट, राइट? सो इम्बाइब VLE कम्स देयर इन पिक्चर विच विल हेल्प यू अ लॉट। बच्चों, आपने सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इसकी मदद से आप जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो, घर बैठे लोगों को सिखा सकते हो, अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। बेस्ट होगा कि इनफैक्ट प्रैक्टिकल में जाने के पहले एक बार एक अंडरस्टैंडिंग ले लो, ताकि आपको चैलेंजेस या फंक्शनिंग या फ्लो ऑफ जो प्रैक्टिकल है वो काफ़ी अच्छे से समझ आए। किस इक्विपमेंट का क्या पर्पस है, उसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो समझने में ही हमारा कई बार जो है आधे से ज़्यादा पीरियड चला जाता है, क्लास चली जाती है और हम फंस जाते हैं, प्रैक्टिकल पूरा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पे VLE जो है इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे रही है आपके लिए। All you have to do is just download the app and get started. Then we have the Imbibe app, which of course contains thousands of videos, books, 3D learning videos, 2D learning videos, beautiful animations being curated and created. So आपने क्या करना है, इम्बाइब ऐप को चेकआउट कर लेना है। आपके लिए अभी मैराथन सेशंस भी लाने वाली हूँ मैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, विच इज़ योर आफ्टर एग्जाम्स का 3rd, 4th एंड 5th, एक्चुअली 4th, 5th एंड 6th, 3rd इज़ योर संडे। तो आप ये सेशन देखोगे एंड उसके बाद आप जो है फुल सिलेबस मैराथन होगा, हिस्ट्री का होगा, पॉलिटिकल साइंस का होगा, ज्योग्राफी का होगा और आपका इसका इकोनॉमिक्स का भी होगा। और ये सिर्फ मैराथन अटेंड करके मैं गारंटी देती हूँ दैट यू विल be able to score more than 80 to 85%, because we'll be doing the entire syllabus and that will also happen on the Imbibe app. So please make sure that you are tuned to it, you're registered for the sessions and you do not miss out on it, okay? And then you have the Imbibe Lens app, जिसका magic हम already देख ही चुके हैं, how wonderful that is. Now we'll talk about the hazards of mining. Mining बच्चे हमने जब भी रिसोर्स पढ़ा है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, डेवलपमेंट पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है या लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, सॉइल इरोशन के बारे में, सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में। एक बड़ी चैलेंज जो हम पढ़ते आए हैं हैज़ बीन द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, जो प्रॉब्लम माइनिंग लेकर आती है, ठीक है? माइनिंग में क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास रिफाइनरीज़ है, वो इन मिनरल्स को ऑब्टेन करना चाहती है अर्थ से। अब अर्थ से ऑब्टेन करने के लिए अर्थ के बहुत, मतलब ऐसा तो नहीं है कि टॉप लेयर में ही आप गए, थोड़ी सी मिट्टी निकाली और आपको मिनरल्स मिल गए।
इमेजिन अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, कितनी मशीन की कॉस्ट, कितनी सारी चीज़ें हमारी बच जाती, बट ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, मिनरल्स जो है नीचे आपके दबे हुए हैं, उन्हें डिग करना होता है, उन्हें ढूंढ कर निकालना होता है, उनके ओर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और ओर्स से फिर इन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस नॉर्मली जो है डिग करके होता है अर्थ को, सॉइल को। इसकी वजह से क्या होता है, वो पूरी ज़मीन जो है बेकार हो जाती है। अगर मैंने पूरी ज़मीन जो है वो खोद कर खोल दी, डिग करके ओपन छोड़ दी, तो क्या आपकी किसी काम आएगी? चाहे कितनी ही फर्टाइल क्यों ना रही हो, इट वुडंट बी ऑफ एनी यूज टू यू। सो इंक्लूडिंग सो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, माइनिंग की वजह से और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि आप जो इतना सारा डस्ट इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हो, वो एयर पोल्यूशन कर रहा है, लोग इस डस्ट को इनहेल कर दे रहे हैं और आपके नॉक्शियस फ्यूम्स भी निकल रहे होते हैं माइनिंग वगैरह की एक्टिविटी से। बहुत ज़्यादा पुल्मोनरी डिजीज, लंग्स डिजीजेस होने लग जाती हैं। कॉन्स्टेंट थ्रेट्स ऑफ माइन रूफ कोलैप्स, inundation and fire and coal mines is a constant concern। तो constant threat, एक constant डर किस चीज़ का बना रहता है? एक constant डर बना रहता है। कई बार ऐसा आपको सुनने में आया भी होगा, जैसे धनबाद में कोल माइन जो है वो काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे अपने आप हीट की वजह से, क्योंकि कोल में कंबस्टिबल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी जलता है और बहुत अच्छी आपकी एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए तो एनर्जी रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या देखते हैं, कोल में आग बहुत जल्दी लगती है। अब वो क्या होता है, माइन बनी हुई है, कोल है, वो इतनी हीट अप हो गई, गर्मी वैसे ही हो रही है, ज़मीन के अंदर रहती है, तो और ज़्यादा हीट ट्रैप हो करके गर्मी और ज़्यादा अकर कर जाती है इन सारे एरियाज़ में, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी बच्चे that it will end up catching fire। तो कोल माइंस जैसी जगहों पे फायर का हो जाना बहुत कॉमन चीज़ हमने देखी है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स माइंस जो है वो डिग की जाती हैं अंदर में। ऊपर एक लेयर सरफेस का रहता है जो कि अंदर से वॉइड होता है। अंदर से क्या होता है, वॉइड होता है। तो अंदर से अगर वॉइड है तो ये कभी भी ऊपर से जो लेयर है वो गिर सकती है। आप सोचो जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है ये। सो रूफ कोलैप्स, इन्यूडेशन क्या है, टॉप लेयर का सॉइल का, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं प्लांट्स के लिए, जो प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स में भी पास होते हैं, वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और ये पूरा इन्यूडेट हो जाता है, पूरा ज़्यादा जो है टॉप लेयर हट जाता है, ख़राब हो जाता है। और कोल माइंस में फायर तो चैलेंज हम समझ ही रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स एक्सप्लॉइटेड, नॉट पेड इनफ। सो कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जो भी गंदगी निकल रही है माइनिंग एक्टिविटीज से, वो वॉश आउट होकर के या पर्पसली नदियों में ड्रेन आउट कर दिया जा रहा है। अगर वॉश आउट होकर के जा रही हैं तो भी हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम इन जो गंदगियों को निकाल रहे हैं प्रॉपर ट्रीट करके डाल रहे हैं, ताकि वो वॉश आउट होकर के भी साफ चीज़ें लेके जाए और एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स को वहाँ पे और पानी को जो है डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम हमारा कचरा जो है माइनिंग से निकलने वाला, स्पेशली फैक्ट्रीज में तो फिर भी शायद एफ्लुएंस जो है वो एक बार को ट्रीट कर दी जाती है कई सारे फैक्ट्रीज में। इन सारी जगहों पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हवा में, पानी में, हर जगह जो है भर भर के क्या निकल जाता है, आपके इनके डस्ट पार्टिकल्स और बाकी सारी चीज़ें जो उसे पल्यूट कर रही होती हैं, अनफिट बना रही होती हैं फॉर कंजम्पशन। सो कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज इज ऑल्सो अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू लैंड एंड सॉइल डिग्रेडेशन। तो ये जो हम आपकी ज़मीन खोदते हैं, हम क्या करते हैं, ज़मीन को डिगअप करते हैं। ज़मीन को डिगअप करके जो निकलता है उसको साइड में जमा करते जाते हैं। तो ये जो हम जमा करते जा रहे हैं, स्लरी बनाते जा रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल निकलता जा रहा है, वो लैंड के, सॉइल के डिग्रेडेशन में लीड करता है, वेस्टेज में लीड करता है, एज वेल एज इंक्रीज रिवर एंड स्ट्रीम पोल्यूशन। सो एवरी वे पॉसिबल, पानी, फैक्ट्रीज खुद जो पोल्यूशन कर रही हैं उनके लिए चैलेंज। ठीक है, रिवर में जा कर के आपका ये सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ का सामान जमा हो जाएगा तो फ्लड जैसी प्रॉब्लम, पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम, रिवर्स के लिए चैलेंज, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रीम पोल्यूशन तो हमने समझ लिया। स्पेशली अगर ट्रीट नहीं की जा रही है इन चीज़ों को ढंग से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई थिंक काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ मैं। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ क्विक क्विज क्वेश्चन, देन विल गेट बैक।
The question is, mineral formation is a quick process making resources infinite and renewable. Is this statement true or is this statement false? मिनरल फॉर्मेशन जो है वो एक बहुत बड़ा क्विक प्रोसेस है, ठीक है, और इस क्विक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को बनाते हैं और इसीलिए ये इनफाइनाइट यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाला भी होता है। Is this statement true or is this statement false? ठीक है, तो अब सॉइल फॉर्मेशन जो है और इरोजन वो हैंड इन हैंड चलता है, लेकिन ये ह्यूमन एक्टिविटी से डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रन करता है, लेकिन सॉइल इरोजन। So guys, this statement is obviously false। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल होती हैं, हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज चाहिए, हमें इनका एक जुगाड़ ढूंढना होगा, इनको बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हज़ार्ड्स तो हम समझ चुके हैं। तो जब हज़ार्ड्स हो रहा है, जब हम डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, तो उसको फिक्स करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो व्हाट आर सर्टन मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन दैट कैन बी यूज्ड? सो ओनली 1% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट कंटेन्स वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स। तो जो हमारे पास मिनरल डिपॉजिट है वो सिर्फ अर्थ के 1% में है, तो यानी कि बहुत ही बहुत कम कंटेंट है, क्वांटिटी है। तो इनको बचाना, कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मिनरल्स क्यों बचाने, तो भैया पहले तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको बनने में हज़ारों करोड़ साल लग जाते हैं फॉर्मेशन में, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इनफ रिसाइकलिंग एंड रीयूज हमेशा पॉसिबल नहीं होता या लोग नहीं करते हैं। सो वॉट वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज that we have to protect them, because also the quantity in which it is present on the entire earth is just 1% and उसका formation बहुत time taking process है। Consumption rates surpass replenishment rates leading to resource depletion। समझ रहे हो आप, जो कंजम्पशन का रेट है वो सरपास कर जाता है रिप्लेनिशमेंट रेट को। जितना भी बनकर मिनरल आ रहा है, आज मान लो 20 साल के बाद 600 kg मिनरल बन गया, लेकिन जो हमारा कंजम्पशन है वो 20 साल में उस 600 kg मिनरल को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अगले 2 से 3 साल में, मैक्सिमम 5 साल, उससे भी ज़्यादा जो है 10 साल, इतने में आपको जो है पूरा मिनरल इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो जितना वक्त उसे बनने में लगा, रिप्लेनिश करने में लगा, ख़त्म करने में बिल्कुल भी नहीं लगता है, फटाफट से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। So continued extraction leads to increased cost due to deeper mining and lower quality ores। हमने अच्छा क्वालिटी और जो ज़्यादा अमाउंट में था उसको निकाल कर ख़त्म कर लिया, अब फिर भी काम चाहिए, एक्सप्लॉइट करना है और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं और ज़्यादा डीप माइनिंग करने के लिए, और ज़्यादा, अगर लेयर 2 तक माइन किया है, लेयर 4 तक माइन किया है, तो अब लेयर 8 तक जाएंगे। एक तो वहाँ पे क्वालिटी उसकी वजह से, क्योंकि बहुत नीचे बच्चे, सो द क्वालिटी नेसेसरली मे नॉट बी एक्चुअली नाइस ऑफ द मिनरल दैट इज ऑब्टेन्ड, प्लस ऑफ कोर्स द अमाउंट ऑफ डैमेज दैट वी आर कॉजिंग टू द अर्थ, टू द ग्राउंड। नीड फॉर प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मिनरल यूसेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव रेड मल्टीपल टाइम्स डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट द डेवलपमेंट has to be sustainable, right? It has to evolve, it has to be a long term thing, it has to be helpful for the future generation. You cannot just compromise the future generation and all in one go and completely। एवोल्यूशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है हमें उन जगहों से भी मिनरल निकालने में, और काफ़ी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से महंगी थी, लेकिन फिर भी निकल करके रिलेटिवली उतनी महंगी नहीं पड़ी उन जगहों से जहाँ पे अपनी मतलब जहाँ
ऐसे सारे डिफ़िकल्ट टेरेन से भी निकाला जा सकता है। वहाँ पे हमने क्या देखा है, एवोल्यूशन देखा है टेक्नोलॉजी में, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ व्हाट इज़ मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल एंड एक्सेसिबल फॉर अस टू यूटिलाइज इवन द लो ग्रेड ओर्स एट लोअर कॉस्ट। कम पैसों में लो ग्रेड ओर्स भी निकाल रहे। देखो लो ग्रेड ओर्स में को निकालने में कम पैसे लगे वो कंसर्न नहीं है, वो रिटर्न में नहीं आता है, क्योंकि लो क्वालिटी का होगा तो उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होगा, उसका जो है रिटर्न इतना अच्छा नहीं होगा. सो एवोल्यूशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी hence has helped with all of those things. Then of course we are constantly emphasizing over recycling, utilizing scrap metals. जो metals बर्बाद हो गए, अब कोई एक स्पून पुराना हो गया, as simple as that. आपने सोचा इसका क्या करें, इसको फेंक देते हैं, उसको रिसाइकिल कर लो, आप उसको एक चम्मच की तरह कंटेनर में यूज़ कर लो, आप उसको सर्विंग के लिए यूज़ कर लो, आप कुछ उससे स्टेट ऑफ आर्ट में जा करके कुछ अच्छी आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर लो. So there are 10,000 things in which we can actually utilize a lot of wastage that's coming out. Sometimes it's not possible, but most of the times when it is, we should go ahead and do it. Utilizing scrap metals, जो metals बर्बाद हो गए हैं उनको मेल्ट करके रीमोल्ड करके या उनसे कुछ नया बना करके हमें यूज़ करना चाहिए. We should emphasize on recycling. अगर मैंने एक बार इस्तेमाल किया तो उसको दोबारा करो. As simple as जैसे कि एक प्लास्टिक के स्ट्रॉ की जगह एक स्टील का स्ट्रॉ यूज़ करना, ये काइंड ऑफ रिसाइकल हो रहा है. मतलब हम ना वेस्ट को निकाल ही नहीं रहे, रीजनरेट ही नहीं कर रहे हैं, पहले ही इतना कंजर्व कर रहे हैं कि स्टील के स्ट्रॉ से ही पी रहे हैं और वो ख़राब नहीं होगा. लेकिन अब जब स्टील का स्ट्रॉ ही ख़त्म पे आ जाएगा तो फिर क्या, तो बैम्बू के स्ट्रॉ से पियेंगे. तो ऐसे ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा. लेकिन ऑफकोर्स अगर हम रिसाइकल करते रहें तो बाकी सारे जो भी मिनरल्स हैं वो हमारे लिए बड़े ईजिली अवेलेबल रहेंगे. यूटिलाइजिंग स्क्रैप मेटल्स करते हैं ये, और ये सीख करते हैं सब्सिस्टेंस फॉर कंजर्विंग माइंस. ठीक है, substitutes for conserving minerals, sorry, mines, I don't know what did I just read. So they also are seeking substitutes for conserving minerals. यानी कि जो तरीके हैं वो तो हमने फिगर आउट कर लिए कि ठीक है, थोड़ा ये तरीका है, थोड़ा वो तरीका है, लेकिन बच्चों इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जो हमें फिगर आउट करना अभी भी रह रहा है और अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है फॉर अ बेटर फ्यूचर. So here comes your next question. The question is, inhaling dust and noxious fumes causes what kind of diseases? अगर आप जो है हार्मफुल डस्ट को इनहेल कर लेते हो, कुछ खतरनाक फ्यूम्स को इनहेल कर लेते हो, धुएं में चले जाते हो, स्ट्रॉन्ग आपकी परफ्यूम्स की स्मेल्स आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो किस तरीके की डिजीज़ हो सकती है? ये स्टमक की हो सकती है, पल्मोनरी हो सकती है, पल्मोनरी हो सकती है, या फिर स्किन की डिजीज़ हो सकती है. ये सोचकर बताना है आपको. देखो यहाँ पे अगर ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमको नॉलेज देंगे, हैव द नॉलेज. Okay guys, so the kind of diseases that it can actually lead to is your pulmonary disease, which is nothing else but lungs disease. So the kind of problems that they can kind of cause, these mines and the dust and everything, is your
लंग्स डिजीज, इनहेल करने से डस्ट चला जाता है और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. सो देन with this we have covered the mineral resources. Now we'll be talking about the energy resources. Energy resources क्या होती हैं? एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमको एनर्जी देती हैं, फ्यूल का काम करती हैं. ठीक है, जैसे कि हीट हो जाता है या इन जनरल एनर्जी हो जाता है जो फ्यूल हम कार्स में इस्तेमाल करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये भी दो तरह की होती हैं. अब एक होता है कन्वेंशनल सोर्स और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स. कन्वेंशनल से हमारा क्या मतलब है? कन्वेंशनल से हमारा मतलब है ट्रेडिशनल, वैसे रिसोर्सेज जो हम बहुत ट्रेडिशनली हमेशा से, जिनके बारे में हमको पता है, जिनका इस्तेमाल हम करते आए हैं, उनकी ही यूटिलाइजेशन हम आज भी करते हैं. लेकिन ये सोर्सेज जो हैं वो क्या है, लिमिटेड हो जाती हैं, ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका पोल्यूशन कॉज करती हैं, बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. अब हमने क्या देखा है, अब नया आ गया है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में इंक्लूड हो जाता है सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी. ये बेसिकली वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनको हम रिफ्रेश कर सकते हैं फिर से, मतलब इनका कॉन्टिन्यूस फ्लो है जो कहीं ना कहीं अवेलेबल है. तो ये लिमिटेड नहीं है, एग्जॉस्टिबल नहीं है. सो इट इंक्लूड सोलर, विंड, टाइडल. आप वैसी सारी चीजें देख रहे हो जो अनलिमिटेड कहीं ना कहीं अवेलेबल है हमारे लिए. अब हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट व्हाट आर द सर्टेन technologies that we can utilize in order to access these. So it includes solar, wind, tidal, geothermal, biogas and atomic energy. These are more environmental friendly, ज़्यादा environment के लिए friendly है ये. And these are also of course, as I told you, not exhaustible, doesn't take a lot of years, unlike the conventional sources like coal and petroleum to get formed. So conventional source में we'll read about each of these. कोल से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं. तो कोल क्या है? कार्बन से बना हुआ है, काफ़ी अबंडेंटली यूज़ होने वाला अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है ये पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट प्रोवाइड्स. लिग्नाइट जो है वो एक लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है जो कि सॉफ्ट होता है विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट. बच्चे देखो, कोल में एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उतना बेटर होगा. जितना कोल ड्राई होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा ड्राइनेस होगी उतना बेहतर होगा, उतना ज़्यादा अच्छा बर्न करेगा, उतनी अच्छी वो एनर्जी देगा. सो लिग्नाइट जो है इसीलिए लो ग्रेड माना जाता है क्योंकि सॉफ्ट होता है, एक तो बहुत हार्ड नहीं होता है और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है. तो मॉइस्चर कंटेंट है तो बर्निंग प्रॉपर नहीं होगी, तो एनर्जी सफिशिएंसी प्रोवाइड ज़्यादा नहीं होगी. फिर होता है ब्यूटिमिनस कोल विच हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स. काफ़ी डीप बरी किया गया है, बहुत ज़्यादा हीट में, प्रेशर में रहा है, तो ज़्यादा आपकी कॉम्पोजिशन इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ा ज़्यादा हीट ट्रैप भी होता है, तो काफ़ी अच्छा बर्न करता है और इसीलिए ज़्यादा एफिशिएंटली एनर्जी रिसोर्स प्रोवाइड करता है. सो वी हैव लिग्नाइट, वी हैव ब्यूटिमिनस एंड देन वी फाइनली हैव एंथ्रासाइट विच इज़ द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल. हमारे यहाँ थोड़ा सा कम अवेलेबल है बट ऑल ऑफ दीज आर देयर. झरिया, रानीगंज, बोकारो ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं. यानी कि फिर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, झारखंड उड़ीसा का एरिया देखने को मिल रहा है, छोटा नागपुर प्लेटू देखने को मिल रहा है. फिर आते हैं पेट्रोलियम की बात करते हैं. पेट्रोलियम में हमें क्या समझ आ रहा है, प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग, ल्यूब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो पेट्रोलियम जो है उसकी क्या क्या यूटिलाइजेशन है वो समझना है. तो भैया गाड़ी चलाने के काम आती है, मशीन चलाने के काम आती है, एनर्जी प्रोडक्शन के काम आती है ना, ल्यूब्रिकेंट का काम करती है मशीन्स के लिए ताकि मशीन्स ख़राब ना हो जाए. एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ कई सारी चीज़ों का खुद ही रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए काफ़ी काम आती है. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textiles, fertilizers and numerous chemical industries. ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो इसका आपका जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका अलग अलग जगह पे, बहुत सारे जगह पे नहीं प्रेजेंट है. तो ये आपका मुंबई हाई में मिलता है, हमको हमें मिलता है गुजरात में,
मुंबई हाई और गुजरात जो है काफ़ी पास पास भी हैं, तो उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। एंड पेट्रोलियम, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, मतलब बहुत सारे जगहों के लिए, बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स के लिए रॉ मटेरियल खुद है, इसीलिए ये नोडल इंडस्ट्री की तरह, नोडल क्या होता है, फीडर इंडस्ट्री आप एक तरीके से कह सकते हो, जहाँ पे बेसिकली वो बेसिक इंडस्ट्री का काम करता है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरे इंडस्ट्री को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल बन जा रही है, तो ये बाकी चीज़ों के इस्तेमाल में काम आती है, बाकी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उनकी सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी बन जाती है, इसीलिए इसको नोडल इंडस्ट्री कहते हैं। कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, मुंबई हाई पहला हो गया, फिर पास में गुजरात है, और एक थोड़ा दूर पड़ जाता है हमारा अलग तरफ पे, मतलब एक जगह पे नहीं है याद करने के लिए, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसाम होगा दूसरा वाला हमारा ऑप्शन। सो मुंबई हाई, Gujarat and Assam are going to be our examples of the places, not examples, basically the places where we find petroleum in India. इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो और कई सारे सोर्सेज है जहाँ बहुत सारा पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या हो जाएगा, और फिर हमारे पास नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम सब सेम जगह से आती हैं, अलग अलग लेवल पे आती हैं बस, तो नेचुरल गैस भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्स में बच्चे नेचुरल गैस एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली क्लीन एनर्जी देती है, इट्स वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एंड अगर हम कन्वेंशनल सोर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो वी शुड ट्राई टू स्टिक एज मच एज पॉसिबल टू natural gas only. Considered an environmental friendly fuel as I told you. Power and fertilizer industries जो है वो भी की यूजर्स है किसके, नेचुरल गैस के, बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस का वो लोग भी यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड CNG जो है कंप्रेस नेचुरल गैस, वो हमें पता है व्हीकल्स में क्लीन एनर्जी के फॉर्म में फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ अ क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ रैदर चीपर देन पेट्रोलियम एंड योर डीजल। सो आइडियली वी शुड स्टिक टू यूजिंग CNGs मोर। अब तो खैर इलेक्ट्रिकल कार्स भी आ गई हैं विच इज़ सेड टू बी मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इज़ ऑल्ट्रेशन फॉर दिस limited source of energy which is your fossil fuels of coal, and CNG in itself is also limited, ऐसा नहीं है कि limited नहीं है, लेकिन cleaner है तो environmental friendly है इस वजह से, and plus cheaper है, so we should definitely actually focus on using CNG, ठीक है। So large reserves of natural gas have been discovered in Krishna and Godavari basin. कहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है हमें, कहाँ पे इसका एक बड़ा बेसिन कवर किया गया है, कृष्णा और गोदावरी बेसिन के पास हमको काफ़ी ज़्यादा इसका अवेलेबिलिटी मिलता है। Then we have electricity, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो बच्चे हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अपने आप से तो आ नहीं रही है, दो तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है। एक बाय रनिंग वाटर विच इज़ बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो पानी को बहुत तेज से जैसे डैम्स वगैरह से बहाया जाता है, जो कि टर्बाइंस को अपने काइनेटिक एनर्जी से, मूवमेंट वाले एनर्जी से घुमाती हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे कन्वर्ट किया जाता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हमारा होता है फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे कोल वगैरह को बर्न किया जाता है, उसके बाद उससे पानी को हीट किया जाता है, ये जो पानी का स्टीम निकलता है ना कोल के, पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के बर्निंग से हीट होकर के, वो स्टीम फिर वो एनर्जी लेकर आती है जिससे टर्बाइंस मूव होते हैं, और उससे फिर आपका this electricity is produced. Now that is what thermal power energy is. Okay, now we are talking about the non-conventional sources of energy, the non-traditional sources of energy, the cleaner ones, the environmental friendly ones, and of course these are also those sources of energy जो थोड़ा कॉन्टिन्यूस है और एग्जॉस्ट नहीं होती हैं। तो उसमें आ जाता है न्यूक्लियर एंड एटमिक एनर्जी। तो बच्चे बेसिकली न्यूक्लियाइज जो होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस जो होता है उसका फिजन कराया जाता है, उसको फ्यूज कराया जाता है, फिजन या फ्यूजन कराया जाता है, या तो उन एटम को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो भी वो बहुत एनर्जी रिलीज करती है, या दो एटम के टुकड़ों को आपस में फ्यूज करा दिया जाता है तो भी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती हैं।
So nuclear energy is obtained by altering the structure of atoms, either fusion or fission is done. यूरेनियम एंड थोरियम जो है दो कॉमनली यूज वो हैं आपके एटमिक और न्यूक्लियर पावर जो जनरेट करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है. देन वी हैव सोलर एनर्जी, जो धूप से आ रही है गर्मी, उस गर्मी को आप ट्रैप कर दो. जैसे हमने सोलर प्लेट्स जो है अब यूज करना शुरू कर दिया है द फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी की मदद से. फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी इन सोलर प्लेट्स में यूज होती है. वो हीट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हम बाकी का काम कर सकते हैं. सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सन्स लाइट. फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी की मदद से हम कन्वर्ट कर पाते हैं सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी. देन वी हैव द विंड पावर. तो बच्चे देखो, हमें समझ आया कि पानी भी जब तेज मूव कर रहा है तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ रही है, मूवमेंट के कारण एनर्जी आ रही है. वैसे ही विंड में भी एनर्जी आती है. सो विंड एनर्जी और पावर इज यूज फॉर बाय हाउ इज इट यूज टू, द विंड इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. द मूवमेंट ऑफ द विंड बेसिकली मूव्स द ट्रेडमिल्स विच जनरेट सर्टेन एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. विंड टर्बाइंस इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. जो लार्जेस्ट हमारा विंड फार्म क्लस्टर है वो तमिलनाडु में नागरकोइल से लेकर के मदुरई जब आप जाओगे तो वहां पे आपको बहुत बड़ा सा विंड मिल्स का फार्म दिखेगा जहां पे विंड एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है. फिर आता है बायोगैस. बायोगैस एक्चुअली काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बहुत समय से इस्तेमाल किया जा रहा है. बायोगैस क्या है? बायोगैस में आप बहुत सिंपल सा एक बायोफ्यूल है, यानी कि एक ऑर्गेनिक क्रिएटेड हमारे द्वारा फ्यूल होता है, ठीक है, जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है किसी भी प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिक वेस्ट के डीकॉम्पोजिशन से. बच्चे देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट में ना कार्बन होता है. कार्बन को जब आप बर्न करते हो तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है. ये जो पेट्रोलियम हो गया, ये जो कोल हो गया, ये सबके पास एनर्जी कहाँ से आ रहा है? इनके कार्बन कंपोनेंट से आ रहा है. और चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई जानवर हो, कोई पौधा हो, कोई फल हो, इन सब में भी बहुत ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है. तो जब इन सब चीज़ों का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इनका इस्तेमाल हो जाता है, इनको आप एकत्रित करके रख दो, इकट्ठा करके एक जगह पे रख दो और उनको डीकम्पोज होने दो कि भैया डीके हो जाओ, ठीक है. तो जब डीके होता है, डीकम्पोज होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज करते हैं, एक बहुत गैस रिलीज करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो कार्बन से निकल रही होती है जो इन लाइफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स में होती हैं. तो ये काफ़ी एफिशिएंट होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प की जा सकती है, इनफ होती है एक घर को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए. अगर एक टैंक में डोमेस्टिक लेवल पे किया जाए, रोज़ का कचरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको जमा कर करके एक टैंक में उसे सड़ाया जाए, बेसिकली डिकम्पोज होने दिया जाए और फिर जो उससे गैस निकले उसे कलेक्ट किया जाए, तो वो एक घर को पावर सप्लाई कर सकती है. तो अगर लार्जर स्केल पे ये किया जाए तो आप सोचो कितना ज़्यादा बायोगैस जो है वो हम एफिशिएंटली जो है आपका जनरेट कर सकते हैं. ना बायोगैस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग. कैटल डंग जो है उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. या कैटल डंग भी जो है इस्तेमाल होता है. ये क्वालिटी ऑफ मन्योर को भी जो है वो बेटर बनाती है. जो आपका ये कचरा फिर निकलता है उसको मन्योर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आती है. देन टाइडल एनर्जी, टाइड्स से निकल रहा है ये वर्ड टाइडल. जो हमारी वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है, मूवमेंट के कारण आ रही है. तो उस एनर्जी को जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं टाइड को और यूजफुल फॉर्म में यूज़ करते हैं जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसे ही टाइडल एनर्जी कहते हैं. तो गल्फ ऑफ काम्बत, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, द गैंजेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब जगह पे टाइड्स काफ़ी प्रेजेंट होती हैं. ये टाइडल एरियाज हैं और यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी जो है उसे कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करने के लिए, टाइडल एनर्जी. जियोथर्मल, जियो यानी कि बच्चे ज़मीन, द लैंड, द अर्थ, थर्मल यानी कि हीट, यानी कि हमारी ज़मीन से हीट निकल रहा है. तो कहीं कहीं पे हमारे अर्थ में क्या होता है, energy is produced by using the heat from the interior of the earth. इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हार्नेस की जाती है. ये दो जगह है, जैसे पार्वती वैली मणिकरण के पास हिमाचल प्रदेश में और पुगा वैली लद्दाख में. यहाँ पे नेचुरली जो है हीट की वजह से क्या हो रहा है, पानी वगैरह गर्म हो जाता है, उसमें एक सर्टेन एनर्जी आ रही होती है, उस एनर्जी को आप निकाल सकते हो और कन्वर्ट कर लेते हो फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में. लेकिन despite of the fact that we have so many alternatives of cleaner form of energy also, what we have to understand is energy resources are also, especially the ones which are कन्वेंशनल, वो एग्जॉस्ट हो रही हैं
और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उन्हें कंजर्व करें, हम उन्हें बचा कर रखें, ठीक है। सो एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी नीड्स इनपुट्स ऑफ एनर्जी, सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू कंजर्व एनर्जी, क्योंकि चाहे कोई भी फील्ड ऑफ वर्क हो, कोई भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो, अगर किसी भी देश को डेवलप करना है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ इससे रन करता है। तो इस वजह से दिस अ वेरी वेरी अर्जेंट नीड फॉर अस टू टेक द सस्टेनेबल पाथ, टू टेक अ पाथ वेयर देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ यूटिलिटी ऑफ these energy resources, and it's not just getting randomly exhausted, you know. So there are some ways which are written over here which we'll discuss, in which we can conserve the energy resources. Please remember this, ये 5 मार्क का क्वेश्चन में, 3 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। पहला, हम सबसे ज़्यादा फ्यूल किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, एंड दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सेज। पोल्यूशन भी कर रही हैं, ख़त्म भी हो रही हैं, तो इनको बचा कर रखना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, शेयर्ड कैब्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करने लगे तो या वॉकिंग ज़्यादा प्रेफर करें फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। सो बेसिकली इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन को अगर अच्छे से रेगुलेट किया जाए तो एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमारे इंडिविजुअल व्हीकल से जो अदरवाइज बर्बाद हो रही हैं, डबल यूज़ हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी उनकी यूटिलिटी। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, जब नहीं इस्तेमाल कर रहे और रूम से निकलते वक्त लाइट्स टर्न ऑफ कर दो, फैन टर्न ऑफ कर दो। हमारी आदत होती है AC चलाकर चले जाते हैं कि जब वापस आएंगे रूम ठंडा मिलेगा। अरे 5 मिनट गर्म मिल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है यार, उतनी देर तुमने जो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद की है, सोचो आगे के जनरेशन में आपके फैमिली कोई मेंबर हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, उनके काम आ जाएगा कि वो 3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी से AC चला सके, या कुछ नहीं तो पंखा भी चला सके और लाइट्स भी जला सके। सो दैट इज़ द अमाउंट, मतलब जो चीज़ हमने प्रोड्यूस नहीं की लेकिन कंजर्व की, वो एक तरीके का प्रोडक्शन ही है, ये याद रखना है। इस पर क्वेश्चन आता है जस्टिफाई करने के लिए। क्या मतलब है इसके बाद, इस बात का? मेरे पास 10 लेट्स से 10 अमाउंट में कोई चीज़ थी, 10 थी, ठीक है। अब उसको मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करना शुरू किया, 1 साल में मैंने 10 ख़त्म कर दिए, तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे ज़्यादा निकालना पड़ेगा, ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। लेकिन वही वो 10 चीज़ को अगर मैंने बचा करके 3 साल तक इस्तेमाल किया तो प्रोडक्शन के बराबर ही होगी ना। नया प्रोड्यूस करके आप लाते और रिसोर्सेज बर्बाद करते, यहाँ पे आपने उसको 3 साल तक वो 10 को इस्तेमाल कर लिया क्योंकि आपने कंजर्वेशन कर ली है, तो आप 3 साल तक इस्तेमाल कर पा रहे हो, और वही कंजर्वेशन नहीं की तो 1-1.5 साल में खत्म हो जा रहा है और नया प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कंजर्वेशन से आप 3 साल तक उसको इस्तेमाल कर पा रहे हो, यानी कि एक तरीके से वो प्रोडक्शन के ही बराबर है। यू आर रनिंग 3 years in the same amount. So switching off electricity when not in use, turning off the taps for example for water when not in use, using power saving devices, आजकल बहुत ज़्यादा power saving devices आते हैं, using non-conventional sources of energy, actively changing into it. Even if you have conventional sources of energy, maybe having some element of non-conventional sources. For example कोई एक 2-wheeler है अगर आपके यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रिकल रख लिया, या फिर आपने थोड़ा सा सोलर पैनल लगा दिया तो गीज़र है, या कुछ ऐसे ही कार चीज़ें हैं, घर के इक्विपमेंट्स जो हैं जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं वो सोलर एनर्जी से चल रही हैं। सो ऐसे भी दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ कंजर्विंग योर एनर्जी। एंड देन ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अनदर मेथड्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे स्विच करना, ठीक है, अवेयरनेस स्प्रेड करना, टर्निंग ऑफ द व्हीकल्स व्हेन यू आर एट अ लॉन्गर ट्रैफिक लाइट और लॉन्गर ट्रैफिक वेटिंग टाइम। तो ये सब क्या है, कंजर्वेशन का मेथड है जो प्रोडक्शन से ही हमें बचा रहा है एक तरीके से, और प्रोडक्शन के बराबर ही एनर्जी हमारे लिए प्रोवाइड करा रहा है। So with this guys, let's quickly summarize what we have done in the chapter. हमने पढ़ा मिनरल्स जो हैं नेचुरली अकरिंग आपके होमोजेनियस एक डिफाइंड यूनिक स्ट्रक्चर के साथ एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं अपने अपने डाइवर्स प्रॉपर्टीज़ के साथ। इनकी स्टडीज़, इनकी फॉर्मेशन, एज, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जियोलॉजिस्ट्स करते हैं। ओर्स जो है वो अक्यूमुलेशन होता है एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का जहाँ से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द वायबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन फॉर एक्सट्रैक्शन। ऑकरेंस जो है इग्नियस रॉक्स में, वेन्स, लोड्स में होती हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स में, लेयर्स में होती हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशन। बाकी जगह पे रेसिडुअल्स होती हैं मासेस में, प्लेसर डिपॉजिट्स, ओशन वाटर्स, रॉक्स डिकम्पोजिशन, इन सारी चीज़ों से भी हमारी मिनरल की फॉर्मेशन होती है। क्लासिफिकेशन, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस हो जाता है, देन यू हैव द नॉन मेटेलिक एंड देन यू हैव एनर्जी रिसोर्सेज।
वाई डू वी नीड टू कंजर्व देम? बिकॉज एग्जॉस्टेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है अगर पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट टेक्स thousands of years for the formation and concentration of minerals. So it's essential to take the necessary steps so that the mineral resources can be used in a planned and a sustainable manner. कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के, वो होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल एंड जियोथर्मल पावर्स. और कंजर्वेशन इसीलिए ज़रूरी है, जो कि हमने समझा इतनी देर में डिस्कस किया. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Now another thing which is very very important for you is, guys, the awareness about the Imbibe app, because it's not going to be freely available for a very long period of time anymore. So you have these wonderful features where you have the live classes, you get to learn anything and everything you want about different types of content with the 70,000, more than 70,000 videos available, and of course the books also that comes along with it. Doubt resolution भी आपका एक बहुत डाउट रेजोल्यूशन भी जो है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आप कर सकते हो. आप आराम से कोई भी डाउट एम्बाइब की मदद से रिजॉल्व करा सकते हो. यू कैन इंक्लूड योर पेरेंट्स इन योर जर्नी. अचीव जर्नी है आपके लिए जिससे आप अपने लेवल को अप कर सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस, टेक अप द टेस्ट्स, यू नो, हैव द लेंसेज एंड इंटरैक्टिव लर्निंग कूबोज विच विल ओनली एनहांस योर लर्निंग, एंड इट्स ओनली फ्री, अर्ली एक्सेसिबल फॉर नेक्स्ट few days. Then you will have to pay for it. So go ahead, access it, enjoy it, and see the beauty of it. You can have the virtual learning, the virtual lab experience. You have the Imbibe Lens app, you have the Imbibe app. There's so many other things, right? And of course, if you want to resolve your doubts, let me quickly show you what you have to do. आप जब भी Imbibe के ऐप पे जाते हो, राइट ओवर हियर, ये देखो आज का डाउट आ रहा है, एमडी को आपने क्लिक करना है. इट विल रीडायरेक्ट यू टू द डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप, और यहाँ पे जा करके आप जो है आराम से अपने डाउट को इस चैट पे रिजॉल्व करा सकते हो. एंड इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू डू दैट, because that's our one point where we directly connect with you. All the information about the sessions etc. I give you there itself. So please make sure that you're a part of it. अभी मैराथन सेशन है, जैसे मैं बता रही हूँ, मंडे को, ट्यूसडे को और वेंसडे को पूरे दिन हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं. कुछ नहीं भी पढ़ा है आपने तो सिर्फ इन मैराथन सेशन से पढ़ करके आप more than 80% स्कोर कर सकते हो. ठीक है, so I just wanted to let you know about that. With this I'm going to wind up this session. I'll see you guys soon. Till the next time, take good care of yourself. Hasta la vista, bye bye, ciao. All the very best for your examinations. You guys are going to rock. Do tell me if this session was helpful for you or not in the comment section, or there's any particular other video that you would require from my end. And if you enjoyed the video, do hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to the channel. Stay tuned. I'll see you guys soon. हम मिलेंगे मैराथन में. Till the next time, keep imbibing.